Hi guys, hope I'm visible to all of you. This live is all about how to help you in earning online. So let's welcome you all, and I'm Vivek Pandey. So this live is going to be really interesting, and let me invite our team member. So here we will be sharing our own experiences regarding the work what we are doing, how to generate money, and how to build empire on online business. So here you will be getting a lots of knowledge, experiences, so that you can make use of it in your coming days. Because as I know, many of them wanted to earn. Let me see why he's not getting connected. I have invited him. Let's see how long it will take for him to come. So meanwhile, what I would like to tell you is due to this corona COVID pandemic, we all are suffering. So we need to think about the revenue and see the importance, how it's going to be, and what we really need to do in order to establish something new, learning something new, enjoying our day. So, uh, hi Prabha, yeah, this guy. Bhai, I have just invited him. Let's see when he is going to come. So, guys, nowadays in this pandemic situation, we are moving toward. Hi, bhai, कैसे हो? हाँ ठीक है। हेलो पांडे जी, कैसे हैं आप? राम राम। राम राम जी। और भाई सब कुछ बढ़िया? हाँ सब ठीक है। हम्म, और भाई कैसा रहा आज का वीकेंड? वीकेंड अच्छा रहा, ठीक था। Good. हाँ। So let's just that's what I'm saying to my audience, that how important it is in this generation to do a online job or online business or something related to online, because in this pandemic situation, what is our own position, because many of the businesses has been destroyed completely, so we should not depend on one job or one source of income. So what do you say, bhai? हाँ और क्या, नेवर डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, इट्स वेरी रिस्की। Yeah. अच्छा, एक सोर्स बंद हो गया तो फिर क्या क्या करोगे इफ यू डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, ओनली ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम? Yeah. So, bhai, let me share you one experience, my personal experience, what happened yesterday. ओके। So, yesterday, as I am like working in a night shift, so my shift starts at 7:30. So I didn't sleep properly over the day. So I just slept only for 2 hours, and after that, when I woke up now, then I realized that I need to start my shift. And I was like, I at that time ना, I felt like काश मेरा जॉब होता, मेरा खुद का बिजनेस होता तो कितना अच्छा रहता, मेरा खुद का कुछ होता। अभी इनके लिए काम करना पड़ेगा. Then I remembered my TL. 1 minute, I'm getting a call.
So you continue, भाई वन. सी अगर आप लोग की जॉब है ना, तो साइड बाय साइड यू कैन डू समथिंग लाइक फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न सम मनी, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, सम ऑनलाइन वर्क। क्योंकि क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ जो है आपका वो स्टेबल होना बहुत जरूरी है। सेकेंडरी सोर्स इनिशियली स्टेबल नहीं होता, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसे स्टेबल करना पड़ता है। सो इट विल टेक सम टाइम। इसलिए प्राइमरी सोर्स का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बाद में सी प्लान ए अगर नहीं काम कर रहा, प्लान बी पे भी फोकस करो। प्लान बी अगर अनस्टेबल है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि डेली कितना टाइम देना है। उसके अकॉर्डिंग ही तभी कुछ जो ऑन ट्रैक आ पाओगे, अदरवाइज डिरेलिंग होती रहेगी। और अगर इफ पॉसिबल टेक द हेल्प ऑफ एन एक्सपीरियंस पर्सन ऑल्सो, जो उस फील्ड का मतलब थोड़ा उसे नॉलेज ज्यादा हो आपसे। यस, हेलो एवरीवन। पांडे जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप लगता है वो करके चले गए अच्छा, now it's म्यूट। okay ना? Now you can able to, हाँ राइट। it's audible? Yeah. यस। So भाई, I was sharing my experience, right? So at that time मुझे ऐसा लगा कि काश मेरा बिजनेस होता है यार बोल के। तो मैंने मतलब टीएल को फोन किया और मैंने बोला कि भाई आज मैं नहीं हो सकता मेरे से काम। तो टीएल क्या बोल रहा है मालूम है? ये अपने बाप की बिजनेस तो नहीं होती ना बेटा, हमको करना पड़ेगा जॉब कैसे भी। तो आप एक काम करो, आप पैरासीटामोल खाओ या कोई टैबलेट खाओ, खा के थोड़ा सा मतलब आधा घंटा मैनेजर रेस्ट डॉक्टर करो। बन गए हैं, हाँ जो हाँ रिपोर्टिंग मैनेजर है आपके वो डॉक्टर बन गए। वेरी हाँ, गुड, वो भी मतलब एमबीबीएस किए बगैर। मतलब उनका ये कहना है कि कैसे भी करके 8 घंटे की शिफ्ट करो भाई, आपको करना है, नहीं तो पेमेंट कट हो जाएगा। तो जॉब में ना उस टाइम मुझे लगा कि अरे यार काश अपना खुद का कुछ रहता, अपना खुद का कुछ करते। तो ऐसी फीलिंग्स मैं आती पांच है हमें कि जॉब जो होता है ना, सच में यार जॉब मतलब जॉब की तरह ही रहता है वो वाली फीलिंग नहीं रहती। हम लोग मतलब कभी भी अपने आप को ना लाइक फ्री नहीं समझते, फ्रीडम नहीं रहता है, बंधे हुए रहते हैं, हमें हमेशा वो 8 घंटा देना ही देना है। तो मतलब मुझे ये पसंद नहीं आया। हमें ऐसा चाहिए कि जब मन करे अपना तब करो भाई जॉब, मतलब वैसी बिजनेस चाहिए मुझे कुछ, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ फिलहाल। चलो, अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो उसमें आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, जो आपका मतलब जिसमें जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जी बिल्कुल। जो आपका प्लान बी है। मैं यही कह रहा था, उसके लिए डेली शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा। अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी टाइम मैनेजमेंट की, और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई तो लाइफ मैनेजमेंट की आ जाएगी। ये है, ये कोई पर टाइम लगता है थोड़ा मिस्टर समझने क्रिमिनल में। बोल रहे हैं, हाय हेलो हम्म, क्रिमिनल जी, मिस्टर क्रिमिनल एंड अभिषेक पांडे, हम्म, हाय। हम्म। तो हाँ ये तो है। भाई, तो आपका अच्छा ये एक्सपीरियंस बताओ, कैसा आपकी रहा? सेल आई है कल, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नहीं, पहले तो ये बताओ, उस बंदे से मतलब आपको कहाँ मिला, किस प्लेटफॉर्म पे मिला? पहले आप शुरू से बताइए स्टोरी, बैक स्टोरी। भाई मेरी जो सेल हुई ना, गजब की हुई। मतलब मुझे ना यकीन आ गया कि भाई सेल कर सकते हैं। पहले तो मुझे सोच रहा था कि सेल नहीं हो पाएगी, सेल मुझसे सेल क्या होगा बोल के। लेकिन मुझे थोड़ा बायजूस का भी एक्सपीरियंस था, तो और इस कोर्स से मैंने जो बाइक या परचेज किया, उस कोर्स ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं मतलब वो अपना अपना शेयर करूंगा जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा शेयरिंग का। सेल, हाउ आई गॉट अ फर्स्ट सेल इन दिस कोर्स। तो भाई देखिए, सेल्स में क्या होता है कि यू नीड टू बिल्ड योर ओन प्लेटफॉर्म्स, लाइक यू नीड टू शो देम दैट यू आर रियली वर्किंग एंड यू आर कंसिस्टेंटली वर्किंग, एंड वी नीड टू डेवलप अ फेथ एंड ट्रस्ट इन आवर लीड्स। तो मैंने वही किया, मैंने जस्ट कॉल किया, बंदे को कॉल करके मैंने पूछा कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है। उसने मुझे बताया कि भैया अर्निंग तो करनी है मुझे, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑनलाइन, मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे बस प्लेटफॉर्म बताइए कैसे आएगा। जब मैंने उसे समझाया और बोला इन्वेस्टमेंट लगेगा भाई, तो उन्होंने मतलब मुझसे पहले ही बोल दिया कि भैया इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि हम पहले ही लोन में है, 6 लाख का लोन लिए हुए हैं और पहले भी ऐसी धोखाधड़ी हो चुकी है मेरे साथ। तो मैंने उससे बोला कि हर एक अपॉर्चुनिटी स्कैम तो नहीं हो सकती ना। तो मैंने उन्हें मतलब अपना टीम का जो है उसे उन्हें अपना रिजल्ट्स दिखाया, टीम मेंबर्स के रिजल्ट्स दिखाए, मेरी खुद की रिजल्ट्स दिखाए, और उन्हें मतलब लाइव ही बहुत कुछ शेयर किया मैंने। तो वो जाके माने और वो बोले कि ठीक है भैया, आपने हमारी इतनी अच्छी से बातें सुनी, तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए। तो बात यहाँ पे ये होती है कि जो हम रैपो बिल्डअप करते हैं, कनेक्शन कैसा बिल्डअप करते हैं।
अब उसकी बातें हम लोगों को सुनना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट कॉल में सारी बातें उनकी सुनी, मैंने सुन के उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ओपन अप हुआ। जब वो अपना दर्द बताने लगे हमको, तो उनका हम्म, दर्द मैंने सुना, समझा कि हाँ इस बंदे का वाकई कुछ समझा। प्रॉब्लम है। तो उसके बाद मैं मतलब उनको रिकमेंड किया कि भाई यहाँ पे आ जाइए, आप इसे परचेज कर लीजिए। आपका मतलब जब आपके अंदर है वो पोटेंशियल, आप कर सकते हैं काम 2 घंटा 3 घंटा, देन व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर इट, व्हाई डोंट यू गो फॉर इट। People are simply wasting their time on platform, social media platform, unnecessarily making reels, that too of no use at all. And people are watching Netflix for hours together, and they will say that we don't have any opportunity to work. They do have a lot of opportunity, but they don't know the knowledge, they don't have awareness how to earn. So in this we will be discussing what are the opportunities, what are the challenges, and starting an online business. So because you and me, we both are belongs to the same platform, so we can share our own experiences with them so that they can understand. What do you say, bhai? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। Yeah. मेरा भी वैसे, मैं आपको पहले बताया था कि कल वो जो बंदे से बात हुई थी, मुझे कंटेंट लिखना है, मुझे कंटेंट लिखना है, वो बंदे की जिद यही थी। ठीक है, तो Okay. मैंने पूछा किस टॉपिक पे कंटेंट लिखना है, उसको टॉपिक का ही नहीं आइडिया है। अच्छा, कहाँ से सर्च करोगे, कैसे सर्च करोगे, व्हाट इज योर अप्रोच, उसको Yeah. उस चीज का भी आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा आप कंटेंट राइटर कैसे बनोगे, पर मुझे सेल नहीं करनी। जैसे ये वाली बात हुई ना, मैंने कहा अगर आपके कंटेंट के थ्रू किसी का प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, तो वो आपको पे क्यों करेगा? टेल मी। बिल्कुल। है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। हर चीज, उसने 3 बार कॉल किया मुझे, जी। मैंने उसे लिंक भी फॉरवर्ड किया, फिर भी वो डाउट पे है। राइट। मैं, या। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं ना, खैर अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि ये फ्रॉड है या ये है। मैं उसे ये कहता हूँ, आपने इतने इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप ये बात कह रहे हो ये फ्रॉड है, इतने स्कैम है और ये सब है, तो आपने इसका मतलब काफी डीप रिसर्च किया हुआ है फ्रॉड और स्कैम के ऊपर। पहले तो दोनों का डिफरेंस बताओ, होता क्या है। ठीक है। और अगर अच्छा, मैंने जिस कंपनी के बारे में बताया है, तो उसका वो क्या है, यूआरएल क्या है, वेबसाइट क्या है, उसे वो भी नहीं पता। तो मैंने कहा बिना रिसर्च किए आप ये ऐसे बात कैसे कह सकते हैं ये फ्रॉड है या स्कैम है। अब फिर मैंने बिल्कुल। उसे एक एग्जांपल भी दिया कि मान लो आपका फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करता है, भाई मुझे कुछ पैसे दे दो, अभी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। वो पैसे लेके भाग जाए, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा या स्कैम की कैटेगरी में आएगा? अब बताओ, है ना। तो कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा मैं आपसे एक चीज बोलूं, ना वो फ्रॉड है ना वो स्कैम है। ठीक है। जी। ये देखो, फ्रॉड क्या होता है, धोखाधड़ी। ठीक है। वो जो है उसे कहेंगे विश्वासघात, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब आप हिंदी में बोलेंगे उसे हमारे पैसे डूब गए, वो डूबे नहीं है, उसे कहेंगे बैड डेट्स, वो पैसे लेके भाग गया। है ना, दो कॉन्सेप्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ये जो क्या बैड डेट्स। जी। जी। तो पहले तो अपना आप इस चीज में भी डीप रिसर्च करो, फिर बात करते हैं। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो, क्लियर कट मना कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मत या। बोलो ये फ्रॉड है या स्कैम है। ऐसे अगर कोई मिलता है तो उसे क्लियर कट बोलो, ऐसे समझाओ उसे। उससे पूछो, वो कि खुद ही पूछो भाई फ्रॉड क्या है, स्कैम क्या है, एग्जाम्पल तो दो। इतनी कंपनी आई, उससे पूछो कितनी कंपनीज आई हैं, और जो भी कंपनीज आई हैं उनका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपने काफी अच्छा रिसर्च किया है कि कौन सी कंपनी स्कैम कर रही है। तो ये होता है। ठीक है। या। और अब वो देखो, अभी भी मेरे स्टेटस चेक करता रहता है, लेकिन आया नहीं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पुश नहीं करो, पुश नहीं करना। हमारा काम या। एजुकेट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, पुश करना नहीं है। पुल पे फोकस करो, अट्रैक्शन मार्केटिंग पे, पुश पे नहीं। या मतलब उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर वो बंदा चाहता है कि मेरा हालात सुधरे, मेरी मतलब नॉलेज सुधरे, तो वो बंदा खुद ब खुद आएगा। उसको अपन कितना भी डेफिनेटली। पुश करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है सुनो, अपने को। अच्छा और मजेदार बात बताता हूँ। जिससे मेरी कल बात हुई ना, इतना इंटरेस्टेड था, खुद कॉल भी कर रहा है। तो वो बोला, हाँ। मैंने उसे पूछा आप करना क्या चाहते हो। हम हमने गोंडा में रहता है, चंडीगढ़ में उसे वो करना है, कोई कोर्स करना है। हम इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी करेंगे। मैंने कहा इसका मतलब लॉयर बनोगे? नहीं, हम कंटेंट राइटर बनेंगे। मैंने कहा कंटेंट राइटर के लिए बीए एलएलबी करने का क्या मतलब है? पहले अपना मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो। मैंने कहा जानते हो आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, 12th हुआ है, 12th हुआ क्या आप लोग को, तो कोरोना की वजह से वैसे ही क्लियर कर दिया, सब प्रमोट हो गए।
सब पास हो गए, है ना। तो ये तो चीज आपको रेडीमेड लड्डू मिल गया। अब रेडीमेड लड्डू मिल गया है, तो आप रिसर्च क्यों करोगे, है ना ना। और मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, आप जिस कॉलेज में जिस कोर्स में जा रहे हो, क्या उस कोर्स का उसका एंड रिजल्ट क्या है, आप उस फील्ड में वाकई जाना चाहते हो। सेल्फ एनालिसिस करो, आत्म मंथन करो जरा, है कि आप मतलब उस पे मतलब इस कोर्स के लिए आप मतलब वाकई इंटरेस्टेड हो या नहीं। टाइम पास करने जा रहे हो तो यार, तो यहाँ हमारे साथ आ जाओ, यहाँ टाइम के साथ यूटिलाइज करोगे। टाइम या टाइम इन्वेस्टमेंट भी यही है, टाइम को इन्वेस्ट करोगे, अदरवाइज टाइम वेस्ट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है आजकल की जनरेशन में कि मतलब कि वो करना क्या चाहते हैं उस पे, मतलब उनको मतलब वो नीश क्या है, वो किस टॉपिक पे हाँ इंटरेस्ट ऑफ मैंने पूछा एरिया था। है, हाँ ये लैकिंग कह है रहा है, वहां पे कहीं ना मैंने कहीं। पूछा कि आपका मतलब क्या नीच, किस नीच पे आप लिखना चाहते हैं। कह रहे हैं नीच क्या होती है। मैंने कहा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखो, नीच होती है ब्रॉड कैटेगरी में तीन: हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। ठीक है। अब हम लोग जो कर रहे हैं वह लाइन, जो कि बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, उसकी एक क्या कहते हैं, डीप में जाओ, सब नीच होती है। और जितना नैरो जाओगे, जितना डीप में जाओगे, उतनी ज्यादा वो होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जी उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, वो डोमेन एक्सपर्टीज हो गया ना आपका, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो इस वजह से आप ज्यादा चार्ज भी कर सकते हो। अभी मैंने कुछ और बंदों का इंटरव्यू देखा। एक है हाई ऑन मार्केटिंग, गौरव मदान का। उसमें एक बंदा 3,000 अर्न करता था, अभी 1 लाख से ऊपर वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। ठीक है। और थोड़ा गांव का लगा, लेकिन बात गांव या शहर की नहीं है, बंदा डेडिकेटेड है। उसने कोर्स लिया उसका, गौरव मदान जी का, और वो कोर्स किया, अभी ही इज अ डिजिटल फ्रीलांसर। उसका स्पेशलाइजेशन है इसमें, फेसबुक एड्स रन में। तो वो एड्स रन करता है, ओनली फोकस ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म, ना इंस्टाग्राम ना गूगल एड्स। अच्छा, यूट्यूब में भी आप एड्स रन कर सकते हो, और उसमें भी एड्स रन कर सकते हो, कोरा कोरा में भी एड्स रन होती है। और किसमें होती है अभी मुझे उतना आइडिया नहीं है, थोड़ा रिसर्च मारना पड़ेगा। ये है। तो उन्होंने एक चीज पे फोकस किया, राइट नाउ ही इज अर्निंग मोर देन 1 लाख। तो ये तो बहाने हैं कि मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जिन्हें करना है यार, वो बंदा 3,000 अर्न करता था, अभी 1 लाख से ऊपर अर्न कर रहा है वो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 3-4 महीने में। तो मतलब ये सारी चीजें जो होती है, खेल होती है, दिमाग माइंडसेट का खेल होता है भाई। कुछ लोगों को जिसको करना वाकई रहता है वो लोग मतलब कदम उठाते हैं, कुछ लोगों को नहीं करना है तो बहाने बनाते हैं, जैसे बोलते हैं टाइम नहीं है, पैसे नहीं है। ये सारी चीजें जो है मतलब एक तरीके की बोल देते हैं ना, मतलब मना करने के ऐसे ये लोगों से सब। एक चीज जरूर पूछा करो, देखो वो आने तो वैसे भी नहीं वाले, उनसे ही पूछा करो, जी भाई तुम अंबानी हो क्या। ना अंबानी हो ना अदानी हो, हैं, तो इतने बिजी कहाँ रहते हो, अपने डेली का शेड्यूल बताओ कि क्या करते हो। ऐसे ही थोड़ा पूछा करो। अभी मेरी एक बंदे से बात हुई कि वो था एरिया सेल्स मैनेजर, 2010 में उसने ज्वाइन किया था डाबर को, 4,000 से स्टार्टिंग थी। उस बंदे ने मेरी हर बात ध्यान से सुनी। मैंने उससे पूछा, आप ये बताओ आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, आपके अंडर में पूरा एरिया है, आप कैसे करते हो। उसने मुझे एक एक चीज बताई, क्योंकि उससे मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा कि वो प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल कैसे कर रहा है, और उसके अंडर में एक पूरा एरिया है। मैंने कहा इसका मतलब आपके मंथली टारगेट्स होते हैं, कह रहे बिल्कुल होते हैं। और मैंने कहा फिर आप वो टारगेट कैसे अचीव करते हो। तो बोला हमें क्या है, जो मेरे मैनेजर हैं, जो रीजनल मैनेजर है, रीजनल मैनेजर से हम लोग को एक शीट मिलती है कि आपको डेली के 40 या 50 काउंटर्स, एक काउंटर होता है इक्वल टू 1 शॉप, आपको 40 to 50 काउंटर्स जाना है पर्सनली, ये आपका आज का काम है। मतलब उन्होंने मंथली टारगेट को डेली टारगेट्स में डिवाइड कर रखा है कि आपको 30 to 50 शॉप्स, आपको काउंटर्स बोलते हैं उन्होंने, है ना। उसको आपको डेली विजिट करना है, उनको अपना आपको बताना है, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है। और मैंने कहा यार डेली का आप 40-50 मतलब 30 to 50 शॉप्स में जाते हो, कह रहे जाना पड़ता है। मैंने कहा आप एक काम क्यों नहीं करते, आप घर जाओ आज, ठीक है। अब बाहर मार्केट मार्केट में था। मैंने कहा, आज जाके आप अपने फोन से एक शॉर्ट वीडियो बनाओ, उस शॉर्ट वीडियो में एक थोड़ा सा 30 to 40 सेकेंड्स का अपना इंट्रोडक्शन रखना, कोशिश करना 2 से 3 मिनट की वीडियो, अपने कंपनी के बारे में बताओ, आपके कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताओ। और उस वीडियो को, अच्छा उसमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दो, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर दो, ठीक है। और उसे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दो। मैंने कहा ये बताओ, आपको 11 साल से ज्यादा यहाँ पे हो गए हैं, जनवरी 2010 में ज्वाइन किया था उसने डाबर, ठीक है। तो मैंने कहा आपको ट्रेनिंग तो मिलती होगी, कह रहा है इस टाइप की बात तो आज तक हमें किसी ने बताई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बताया, आप 11 साल से ज्यादा हो गया है एक कंपनी में। तो कह रहा है यार हमें तो आइडिया नहीं है इस चीज का। मैंने कहा इस चीज का आप आइडिया लो, ऐसा आप करो। मैंने कहा मैंने आपको आइडिया दिया है, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना,
तो कभी भी ये मत सोचना आपको रिजल्ट्स आएंगे। डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहते हो तो फोकस ऑन एक्शन। बोलो मैं आज जाके ही करूंगा। अभी मैंने देखो पहली बार उससे बात हुई है, मैंने उससे बात करी है क्योंकि मेरी लास्ट कॉल थी शाम की, 35 मिनट बात करी, 35 मिनट्स। ठीक है, मैंने कहा आप 2-3 दिन ये करके देखो, फिर मुझे आप कनेक्ट करना, तब मैं उसे प्रोडक्ट पिच करूंगा, अभी नहीं। अभी मैंने सिर्फ सजेशन दिया है उसे। ठीक है, फिर मैंने उसे एक चीज ये भी बोली, मान लो आपका एरिया है लुधियाना, लुधियाना में भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो गए, सिटी है लुधियाना, उसमें अलग अलग एरियाज है, ठीक है, मार्केट्स हैं। आपको अगर बाहर से भी वो आ जाए, क्या नाम है, डिमांड, उसे केटर कर पाओगे आप? तो बोला हाँ कर सकते हैं, हमें तो अपना टारगेट अचीव करने से मतलब है। तो एक काम करो, आप पूरा पंजाब में अपना वो कर दो, सबका फेसबुक है, फेसबुक पेज है, तो अपना वो भी है, क्या नाम है, सिटी का भी फेसबुक पेज है, और सिटी के डिफरेंट एरियाज का भी फेसबुक पेज है। आप सब जगह अपलोड कर दो, आपको इंक्वायरीज आएगी। उस इंक्वायरी से कैसे डील करना है अब वो आप जानो, क्योंकि आपका 11 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आप ऐसा करके देखो। कह रहा वाह, ऐसा तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। मैंने कहा आपने आप फिर मैंने उससे वही पूछा, आप फ्री टाइम में क्या करते हो? तो वो बोला हम तो यही सब करते रहते हैं, आके वो नेटफ्लिक्स देखते हैं। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है। नेटफ्लिक्स की बजाय उसको मैंने बुक सजेस्ट करी, वही साइकोलॉजी ऑफ सेल्स पढ़ो, शू डॉग पढ़ो। शू डॉग नाइकी की स्टोरी है। मैंने पीडीएफ ड्राइव भी बोला, पीडीएफ ड्राइव जाओ वहां से डाउनलोड करो, इतना पढ़ो। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे ना, आपको मैं और भी सजेशन दूंगा। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो पहले मुझे थोड़ा सा आप 2-3 दिन बाद कनेक्ट करके बताना। आप मेरा नंबर सेव कर लो, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, और मैंने उसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दिया है। मेरी प्रोफाइल भी आप चेक कर लेना इफ यू हैव एनी डाउट। कह रहे नहीं सर ये तो बहुत गजब आइडिया है। मैंने कहा इम्प्लीमेंट करो, और फिर मैं और आइडियाज बताऊंगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में और अच्छा अर्न करना चाहते हो तो मुझे मुझे बताना पहले, लेकिन आप जो मैंने आपको बोला है वो इम्प्लीमेंट करो। तो ऐसे आइडियाज भी दो, सजेशंस भी दो, उससे भी पूछो आप सही। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, उसका बिजनेस मॉडल समझो, उसकी बैक स्टोरी समझो। जैसे आपने समझी उसकी प्रॉब्लम, तो देखो आ गया वो। अच्छा आप ये भी कह रहे थे उसका क्या नाम है, पास में एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है हाँ बिल्कुल, उसका सेल मतलब में, वो मतलब वो ऑलरेडी कोई। किसी ने लूटा था उसे, किसी बहाने की ऑनलाइन चलो 10,000 जमा करो। तो उस बंदे का एक्सपीरियंस तो बहुत ही बुरा था, बट फिर भी उसका मैंने मतलब अच्छे से, लाइक बोलते हैं ना, प्रॉस्पेक्टिंग अच्छे से हुआ, हमारी कनेक्शन अच्छे से बिल्ड हुई, बातचीत हुआ, भरोसा जताया गया, मतलब इंटरेस्ट बढ़ा, तो हो गई सेल्स। तो इसमें हम्म, मतलब स्टार्टिंग में स्ट्रगल था, बट जब सेल हो हम्म। गई तब अच्छा लगा कि अरे भाई हम भी कर सकते हैं, आसान है। एक चीज और, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही गाइड करना। ये तो बात सही बोली। हाँ। उनको लाना ही नहीं होता, उनको मतलब लाना मेंटेन भी नहीं है, करना आपको होता उसको है। नर्चर करना है, प्रॉपर नर्चर करना है। जी जी। ठीक है, वो प्रॉपर गाइड लेकिन करना है उसे। और कई ये मत लोग होते दिखाना हैं कि कि वो बोरे भर भर के जो डॉलर वाला मैंने दिखाया था वैसा नहीं करो। आजकल तो गजब के एडवर्टाइजमेंट हो गए हैं कि बोरे भर के डॉलर बोरे मिल भर भर जाएंगे। के डॉलर रखे हुए हैं हमने। ऐसे ऐड नहीं करो, ये नहीं करो। लेकिन सच में और भाई, अगर अब पैसे दिखा के अगर जो भी आ रहा है ना, तो वो फिर से पैसे के लिए ही काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके अंदर कंटेंट ही नहीं रहेगा, वैल्यू नहीं वो रहेगा, तो वो 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 दूसरों को क्या सीखने के देगा। लिए आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, शर्त लगा लो। जब वो इस फील्ड में आते हैं ना, कहते हैं यार ये तो बड़ा पढ़ना पड़ेगा इसमें, वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सेलिंग इज ऑल्सो स्किल, एक्वायर्ड स्किल। देखो दो टाइप की स्किल्स होती है, एक होती है नेचुरल स्किल, एक होती है एक्वायर्ड स्किल। ठीक है, एक मूवी है वाली, क्या नाम है, राजी। राजी में उसका माइंड कितना शार्प होता है। क्या होती है, आलिया भट्ट का, वो जो भी नंबर था उसे ध्यान रहता था। एक बार नंबर बता दो तो उसका बॉस उससे क्या कहता है, यार तुम्हारे अंदर ये जो क्वालिटी है ना, ये ना तुम्हें एक अच्छा अंडर कवर एजेंट बनाएगी। तो तभी उसे वो पाकिस्तान भेजते हैं। तो वो क्या है, उसका गॉड गिफ्ट है, उसकी इनेट स्किल है, उसकी नेचुरल स्किल है। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल द शिवानी जी हैं, डॉक्टर हैं, वो सही बता सकती है, आई एम नॉट द राइट पर्सन। तो वो उसकी नेचुरल स्किल हो गई। अब आती है एक्वायर्ड स्किल। अब देखो, मैंने 12th किया था, हमारे टाइम में ये 2010 ऑनवर्ड्स ये डिजिटल मार्केटिंग छाई है। उससे पहले लोग ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट फोन भी स्मार्ट हो सकता है ये भी किसी ने नहीं सोचा है। सही। स्कूल में तो वाले फोन चलते थे, वो तार वाले, कौन से वो टीएनटी पीएनटी कौन से फोन बोलते थे, लैंडलाइन। हम लोग ने तो सोचा भी नहीं था क्योंकि फोन भी मोबाइल हो जाएगा। कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। तो कहने का मतलब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, हमने उसके साथ साथ अपनी स्किल्स भी अपस्किल करी, अब अपग्रेड करी। ठीक है, नई चीज सीखी। तो जो आपने नई चीज सीखी, दैट इज योर एक्वायर्ड स्किल। जी ठीक जी। है ना, यह जो आपकी नॉलेज है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज ऑल्सो स्किल।
अगर उसको कंसिस्टेंटली आप वो काम करते हो, उसको रिपीटेडली आप वो करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, कहीं यूज पे लाते हो, तो आप धीरे धीरे उस चीज के एक्सपर्ट हो जाते हो, है ना? और वो तो एक्सपर्टीज ही स्टेप बाय स्टेप वो सिंपल सिंपल एक्सपर्टीज ही चीज अपने लेके को चलो। बाद में। जी जी। है वो जो क्या कह रहे हैं? जब अगर हम एक्सपर्ट बन जाते हैं उस चीज में, तो उसी एक्सपर्टिज्म से हम लोग मतलब अर्निंग भी कर सकते हैं और दूसरे को गाइडेंस भी दे और सकते हैं। दूसरों को सिखाओ भी, दूसरे को सिखा के अपना यूट्यूब चैनल पे आप वो चीज उसे लोगों को सिखाओ, बताओ, अपनी नॉलेज शेयर करो। उससे क्या होता है, दिस इज नोन एज री इन्फोर्स्ड लर्निंग। री इन्फोर्स लर्निंग मतलब आपकी वो हो रहा है, क्या नाम है, रिवीजन हो रहा है। जी आप बिल्कुल। उसे लोगों से शेयर कर रहे हो, आपका तो रिवीजन हो रहा है, तो वो आपके क्या हो गया, री इन्फोर्स लर्निंग, और स्ट्रांग होते जा रहे हो उस फील्ड में आप, तभी री जी। इन्फोर्स लर्निंग। ये है। और और कुछ बताओ कहना? भाई। मेरी तो मतलब हुई है। एक बंदे से बात हुई थी, तो वो बंदा मतलब ऐसा था कि रिलीजियस था ज्यादा। तो उसको मतलब ज्यादातर अवेयरनेस नहीं था कि ऑनलाइन क्या होता है सब कुछ। बट वो इंटरेस्टेड था कि हमें कुछ पैसे आ जाए तो अच्छा है, मनी अर्निंग हो जाए। तो देखिए समाज में होता क्या है कि सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जो पीछे वाली जो मेहनत होती है ना, वो कोई नहीं करना चाहता। उसको करने के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं कि भाई इतना कुछ करना पड़ेगा, फेसबुक में हमें लाइव आना पड़ेगा, नहीं तो पोस्ट डालने पड़ेंगे, अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा सबको। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मतलब एक वो होता है ना फीलिंग कि अरे नहीं, पब्लिकली नहीं होना चाहिए, पब्लिकली होने से क्या अच्छा है, सबको दिखावा है। तो ऐसी फीलिंग थी वो बंदे के अंदर। नहीं, और दिखावा उसके क्या है बाद इसमें? आप सामने वाले की हेल्प भी तो कर रहे हो, इसे आप ऐसे क्यों नहीं देखते? जी जी। तो वही तो माइंड सेट की डिफरेंस है ना। वो मतलब जिस वातावरण में पले बड़े हैं, जहाँ पे उनकी मतलब फीडिंग्स हुई हैं, उस हिसाब से डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो बहुत सारे लोग मतलब शर्माते हैं लाइक सोशल मीडिया पे आने के लिए। इसलिए ज्यादातर वो लोग डीपीज भी नहीं रखते हैं अपनी। ऐसा देखा है मैंने, ऐसे ये हुए गलत हैं करते हैं केसेस। ना। एक मेरे को बंदा मिला, अपना नीचे नंबर दिया हुआ था, किसी ने पोस्टिंग करी थी, मैंने उसे कॉल किया। वो बोला, आप सोनू शर्मा को जानते हैं? मैंने कहा नहीं, सोनू शर्मा को तो मैं नहीं जानता हूँ। कह रहे बहुत फेमस है वो नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने कहा सोनू शर्मा ये वही तो नहीं है जिसकी फोटो आपने लगा रखी है? बोले हाँ। मैंने कहा आप किस फील्ड में हो? बोले हम नेटवर्किंग बिजनेस में हैं। उसमें क्या नाम है वो, क्या है, एमएलएम। एमएलएम तो है, वो कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, जिसमें अभी सोनू शर्मा है। पहले वो थे नेस्विच में, अभी वेस्टीज वेस्टीज। ठीक है। तो मैंने कहा आप ये बताओ, आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो? हम ऐसे ही करते हैं, सोनू शर्मा के नाम से इनको सबको लाते हैं। मैंने कहा सोनू शर्मा को आपकी ब्रांडिंग की जरूरत है? आप जैसे लोगों को बुला के ला रहे हो, सोनू शर्मा के नाम से जो अगर कह रहे हैं बहुत लोग आते हैं। मैंने कहा बहुत लोग आते तो हैं, कितने लोग काम करते हैं ये बताओ। तो चुप हो गया। मैंने कहा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्यों नहीं करते हैं? कह रहे नहीं सर, ऐसे ही चलेगा फिर तो। मैंने कहा फिर रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। मैं समझ गया, वो है जंक लीड। वो होता है ना दिमाग के, उसे छोड़ दो। उससे वो बहसबाजी मत करो, उसे छोड़ दो उसे। जब वो बंदा जो बोल रहा बंदा है कि अपनी सोनू फोटो शर्मा। नहीं लगा रहा, अपना पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हो, मैंने कहा कोई आपसे सामान क्यों खरीदेगा जब आप पब्लिक के सामने ही नहीं आना चाहते? बिल्कुल। ये है। तो मतलब वो लोग मतलब एक दूसरे दूसरे का चेहरा लेके आके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सोनू शर्मा के नाम से। लेकिन वो खुद सोनू शर्मा नहीं बनना चाहते हैं। बस उन्हें मतलब डिपेंड रहना है और दूसरे मेहनत का है, नाम चलना है। मेहनत नहीं है भाई। सोनू शर्मा वो बन गए वहां के सलमान खान। ठीक है। अब सलमान हाँ खान को देख के तो लोग आ ही जाएंगे। बिल्कुल। ये है। लेकिन एक बात बताऊं, देखो ठीक है, वो अच्छी बात करते हैं, मैं चीज से डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन मोटिवेशन इज एन इमोशन, वो 15 से 20 मिनट के लिए रहेगा। आप में डिसिप्लिन नहीं है ना, जो कि उस बंदे में नहीं था, और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा वो नई चीज को। तो फिर होगा जी ये, धीरे धीरे लोग यार वो मतलब इंटरेस्ट खो देंगे, आएंगे ही नहीं। आ भी गए तो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। ये है। हर टाइप के से लोग हैं। अब जैसे ये अयाज साहब ने भी बोला था वेंसडे मॉर्निंग में, कोशिश करो कि आपके जो वो है ना कंटेंट, कंटेंट से लोग अट्रैक्ट होके आए। कह रहे नो डाउट रिजल्ट देख के लोग आते हैं, पैसा देख के तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर कंटेंट देख के आए तो ज्यादा अच्छा है। फिर उससे क्या होगा, वो क्वालिटी बंदे होंगे। और उन्होंने ये भी बोल दिया उस दिन कि भैया देखो मैं यहाँ का ओनर हूँ, तुम लोग मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मत समझो। तो ऐसे लोगों की सोच और अप्रोच भी वैसी ही होती है फिर। जी बिल्कुल। ये है। तो आपने समझो, मतलब बात करो।
जी, कितने लोगों से बात करते हैं आप डेली? क्या रहता है आपका शेड्यूल? आज तो 5 ही लोगों से बात हुई, 3 4 5, 3 से 5। अगर फुल टाइम करूंगा तो मैं डेली 15 से 20 लोगों से बात करूंगा। अच्छा, तो मतलब ज्यादातर सामान्य प्रॉब्लम क्या दिख रही है लीड्स की? अरे कुछ नहीं, देखो मेन प्रॉब्लम एक तो यही माइंडसेट की होती है। वो वो फ्री में सारा काम करना चाहते हैं। मतलब कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं ना? प्रॉब्लम ये है। मतलब ठीक पूरी है, पूरी क्योंकि ये प्रॉब्लम काम वही करने है। के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर मतलब वही पढ़ना जॉब जॉब पड़ेगा। का माइंडसेट है। जी जी। मतलब नॉलेज जॉब लेना वाला पड़ेगा माइंडसेट और है। नॉलेज देना पड़ेगा और नॉलेज को शेयर भी करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं उनको बोलता भी रहता हूँ ना कि आप भाई क्या करते थे। आप जैसे आज एक लड़की से बात हुई, मैं लड़कियों से वैसे अवॉइड करता हूँ। ठीक है, वो OLX से मिली थी मुझे। ठीक है, वो अच्छा। बोली कि आपका काम क्या है। मैंने कहा आप पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा बताओ, मैं तभी कुछ बता सकता हूँ। तो वो अपने बारे में बताने के लिए कुछ राजी ही नहीं है। उसने जानते हो क्या लिख रखा था? नाम की जगह फीमेल लिख रखा था। नेम का ऑप्शन आता है, वहां पे फीमेल लिख रखा था। मैंने आपका नाम क्या है, माना कि आप फीमेल हो, इस चीज से मैं डिनाई नहीं कर रहा लेकिन अपना नाम तो लिखो। जो बंदी बताना ही नहीं चाह रही कि कुछ नहीं, हमें आप सारी डिटेल भेज दीजिए। डिटेल भेज देता हूँ, मैंने कहा मुझे पता है वो आएगी नहीं। जो वो कुछ क्लियर कट बताना ही नहीं चाह रही, तो क्या करोगे? ये बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल। मार्केटिंग तो नहीं है। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? कह रही मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी बातों से तो ऐसे लगा आपने अच्छा रिसर्च किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। क्योंकि आजकल सेल्स की जब बात आती है ना, सब नेटवर्क मार्केटिंग पे ही चले जाते हैं। वो पता जी उन्हें भी जी। नहीं होता। ये है। हम्म। तो पहले तो मतलब कुछ लोग सुनने को तैयार ही नहीं है कि हो क्या रहा है। सब लोग एक ही जैसा समझ रहे हैं कि सब कुछ एक ही है। तो घुमा फिरा के ये लोग हमको क्या बोलेंगे कि दूसरे बंदे को बेचो बोल के। यही है माइंड में, मतलब जनरल मेंटालिटी यही है लोगों की। अच्छा, बाद में बट वो लड़का जो था ना, जो जो 2 3 बार कॉल किया था, वो बोलता है इसका मतलब हमें सामान बेचना है, हमें दूसरे को भी ये रिकमेंड करना। मैंने कहा रिकमेंड उसी को करो, पहले खुद तो सीखो कुछ। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मैंने कहा मैंने आपको जो चीज बताई, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई। आप कंटेंट लिखना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे। यहाँ से आप यूट्यूब पे जाओ, आप कोरा पे जाओ, आप PDF ड्राइव से भी वहां से डाउनलोड करके कर सकते हो। मैंने कहा ये चीज मैंने कैसे सीखी? जब मैंने कोर्स में एनरोल हुआ हूँ, नई चीज सीखी, लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ा, काम सीखा। ठीक है, जहां मुझे प्रॉब्लम थी, कंफ्यूजन थी, मैंने उनसे पूछा। मुझे जब प्रॉपर गाइडेंस मिली तभी तो मैं ऑन ट्रैक आया। वरना मैं भी आपकी तरह ये कहता कि भाई मैं भी BA LLB करूंगा, लेकिन फिर मुझे कंटेंट राइटर बनना है BA LLB करने से। मैंने कहा आपको लगता है कि आपकी डिग्री और डिप्लोमा कोई देखेगा? आपके पास अगर स्किल नहीं है, कोई नहीं देखेगा। जी बिल्कुल। लगे रहो, बैठे रहो। लाखों रुपए खर्च करके अगर 1000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, तो फिर वैसी सोच भी वैसी रहेगी। उसमें हजारों रुपए जो मिल रहे हैं, आप उसमें फिर वो करोगे। हजारों रुपए का कोर्स यहाँ खरीद के आप लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। और भाई वो इसको देखिए, स्किल एक्वायर करके। देखिए हाँ। मजे की बात क्या है, मतलब लोग पूछते रहते हैं ना, क्या भाई आप विकी भाई की भी बात सुनो। अच्छा, हाँ हाँ भाई हाँ, बताओ बिल्कुल। बताओ। तो भाई देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ। आपने टेक्निकल गुरुजी का नाम सुना होगा ना? हम्म। जैसे टेक्निकल गुरुजी हुए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मतलब किसी भी आइटम का रिव्यू देते हैं ना। फोन अच्छा हम्म। हुआ, कोई फोन का या चार्जर का या कोई पावर हाँ बैंक का, वो लोग रिव्यू देते हैं कि अच्छा है या बुरा है। बाद में लास्ट में ये जरूर बोलते हैं कि अगर आपको परचेज करना है तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करो। तो उससे होता क्या है, अगर हम क्लिक करके परचेज करते हैं तो थोड़ा सा जो कमीशन होता है वो उनको चला जाता है, राइट? तो ये जो कमीशन हाँ। होता है, ये किसका है? ये फ्लिपकार्ट वालों का होता है, नहीं तो अमेजोन वालों का होता है। तो इससे जो हम्म। है उनको जो है प्रॉफिट मिलता है, क्या कमीशन मिलता है। तो हम्म। उनको मतलब उनके पास क्या है, उनके पास फैन फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर का है, ऑडियंस है पूरा। तो सेम होता है सेलिब्रिटियों के साथ भी। जैसे जैसे स्टार्स होते हैं ना, सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों के पास क्या है, अपना एक ऑडियंस है, अपना एक टारगेट ऑडियंस है। तो ये लोग परचेज कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों के पास क्या है, एक स्टूडेंट के पास क्या है, उसे तो कुछ भी नहीं पता ना सेलिंग के बारे में। सेल क्या होता है, सेल का ABCD भी नहीं पता। तो ऐसे लोगों को हम लोग मतलब क्या करते हैं, कंपनीज होती हैं वो लोग कोर्स प्रोवाइड करती हैं। इस कोर्स में जो होता है ABCD पूरा सिखाया जाता है।
ए से लेके जेड तक अच्छे से सिखाया जाता है कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आपको कैसे सेल्स करना है, कैसे क्लोज करना है, और आपको कैसे बात करनी है सेल्स से, उनकी प्रॉब्लम को समझना है। जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता चलेंगी तब तक आप ब्रांड कैसे बनोगे, आपका पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट होगा। आपको फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती है, फेसबुक में कौन से पोस्ट डालने हैं, कैसे हाँ, वो टारगेट प्रोफाइल। ऑडियंस को क्रिएट, हाँ प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, लिंक्डइन क्या होता है, इंस्टाग्राम में कैसे एड्स रन करते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं ऑनलाइन में बिजनेस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। तो ये सारी चीजें जो कंपनीज होती है ना वो हमें देती हैं एज अ कोर्स। तो जब हम ये कोर्स करते हैं तो हम भी मतलब प्रमोट करने की स्किल्स आ जाती है हमें। जब आ जाती है तब उसी से तो अर्निंग होती है, हमारी भी कमीशन बनती है। जब हमारी कमीशन बनती है तो इनडायरेक्टली हमारी लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों होती है। देखो, ये तो टेक्निकल गुरुजी हो गए या ये लोग हो गए ना, ये भी पहले नॉलेज देते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, बताते बिल्कुल हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये देखो ना, पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर प्रोडक्ट पिच करते हैं लास्ट में। ठीक है, तभी बोल देते हैं भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में वो है, एफिलिएट लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो जी। 50% तक, मेरे 40 to 50% तक लोग परचेज कर लेते होंगे, है ना। और वो तो कोई अपना वो रिजल्ट नहीं शो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और कह सकते हो यहाँ पे कि ये स्किल एक तरीके से स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म भी है। ये जो है ऑनलाइन कोर्सेज है ना, ये स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म भी तो है। स्किल आप एक्वायर भी कर रहे हो, आप स्किल बिल्ड भी कर रहे हो, आपको मतलब प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही है, प्रॉपर नर्चर भी हो रहा है, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। तो ये भी कह सकते हो, स्किल क्रिएशन और बिल्डिंग, स्किल अच्छा भाई, क्रिएशन प्लेटफॉर्म, स्किल बिल्डिंग भाई प्लेटफॉर्म। आज आप अपने ऑडियंस को ये बताइए कि हम मतलब जो कोर्स है अपना, वो कोर्स से ऑडियंस को क्या क्या बेनिफिट होता है, मतलब क्या क्या सीखते हैं वो लोग। भाई देखो, अभी आपने पहले तो ये समझना है कि जिसके थ्रू आप ये इस बिजनेस में आए हो, ठीक है, उससे तो सबसे पहले तो उससे रेगुलर बात करते रहा करो। ठीक है, अपना जो अपलाइन है या स्पॉन्सर है, जो भी बोलते हो आप। दूसरी चीज, कोर्स पूरा देखो। अब मैं इस बात पे अभी आऊंगा, आपकी बात पे, क्योंकि ये लोग बेसिक बेसिक चीजें नहीं करते। लोगों को कई बार क्या है, अब जैसे मैंने कई लोगों का वह ग्रुप में भी देखा है, मैसेज आता है कि सर मेरा तो जो स्पॉन्सर है मेरी सुनता ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है आप रेगुलर से बात नहीं करते हो, है ना। ये भी तो हो सकता है कि आप उससे रेगुलर बात ना करते हो, वो बात हर कोई छुपा देता है अपनी। तो सबसे पहले कोर्स पूरा देखो, अपने स्पॉन्सर से रेगुलर बात करो। कहीं कोई गलती हो गई हो, अच्छा, टीम मेंबर्स जो आपके बनेंगे, वहां पे भी अपना थोड़ा ना प्रोफेशनल नेटवर्क भी बढ़ाओ। अच्छा, अब कोर्स क्या है, जो हमारे कोर्स का यूएसपी है, जो एक्स फैक्टर मतलब जो इसका जो यूनिक पॉइंट है, वो क्या है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ठीक है, अब हम यहाँ किसी से कहेंगे कि देखो हर बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है, लीड्स। लीड्स क्या होगा, लीड्स इक्वल टू योर प्रोस्पेक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, मतलब जो फ्यूचर में आपके कस्टमर बन सकते हैं पर अभी है नहीं। देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ प्रोबेबिलिटी, है ना, 50-50 चांसेस हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कैसे गाइड कर रहे हो, कैसे मोल्ड कर रहे हो, कैसे नर्चर कर रहे हो। ये वही मैंने कहा ना, इसे आप ऐसा भी कह सकते हो, ये स्किल क्रिएशन और स्किल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। तो भाई आपने आपने राइट। बहुत अच्छी बात बताई। एक बताई कि लीड्स जनरेशन, मतलब कस्टमर को कैसे लाया जाए, कस्टमर कैसे आते हैं, कस्टमर कहाँ से लाया जाए, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ये अट्रैक्शन एक मार्केटिंग, दिखाई। अच्छा। है ना। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में लो। एक एक लेमेन को आप कैसे समझाओगे। भाई देखो, किसी बिजनेस के लिए लीड्स इंपॉर्टेंट होती है। अब लीड्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। लीड्स होते हैं योर पोटेंशियल कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। ठीक है, समथिंग दैट लीड्स टू सेल्स इज नोन एज लीड। बहुत ही सिंपल सिंपल हर चीज रखो। जितना जितना अपने ऊपर काम करोगे ना, अपनी अपस्किलिंग पे, अपनी नॉलेज पे, डेली रीडिंग करोगे, उतना अच्छा रहेगा, उतनी नई चीज सीखने को मिलेगी। लोगों को बुक सजेस्ट करो कि मैंने यहां से ये चीज सीखी, आप भी सीखो। आप और भी नई चीज सीखना चाहते हो ना, हमारे साथ काम करो, हमारे साथ जुड़ो, तभी हम आपको और भी नई चीज बता पाएंगे। वरना कोई फ्री में अपना टाइम क्यों देगा इतना, आप बताओ। आप कहते हो हमें हर चीज फ्री में करना है, अगर आपको हर चीज फ्री में करना है, यूट्यूब तो है ही, जाके कर लो वहां से। एक चीज और, जो हमारा कोर्स है वो है ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। जो यूट्यूब है वो है अनसिस्टमेटिक लर्निंग। हमारा क्या लर्निंग है, सिस्टमेटिक लर्निंग, स्टेप बाय स्टेप, सिक्वेंशियली आपको कैसे काम करना है। जो यूट्यूब है वो भी सर्च इंजन है, ठीक है, उसमें रैंडमली हम टॉपिक पे सर्च करते हैं, ठीक है।
तो हमारा कोर्स क्या हो गया? सिस्टमैटिक लर्निंग। यूट्यूब है अनसिस्टमैटिक लर्निंग। ऑर्गेनाइज वे में, सिक्वेंशियल वे में, स्टेप बाय स्टेप वे में कुछ नहीं है। आप जी रैंडमली कोई टॉपिक सर्च कर रहे हो, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक, कोई भी कुछ भी, अकस्मात। इस टाइप से ऐसे समझाओ उसे। तो भाई आपने पहले बोला लीड जनरेशन, उसके बाद और सारी चीजें। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। देखो अब यहाँ पे अगर वो पूछेगा ऑर्गेनिक का क्या मतलब, बोलना अनपेड। देखो पेड भी होता है जिसमें फेसबुक एड्स भी होती हैं, इंस्टाग्राम एड्स भी होती है, गूगल एड्स भी होती है, यूट्यूब एड्स भी होती हैं और कोरा एड्स भी होती हैं। ठीक है। हाँ बट क्योंकि अभी कई लोगों की जॉब गई, अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में मार्केट की हालत भी खराब है, लोगों के बिजनेस भी डाउन हुए हैं, तो आप ऑर्गेनिकली कैसे उससे अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हो अपनी बिजनेस के लिए, ताकि रेवेन्यू जनरेट कर सको। तो उसके लिए हमारा कोर्स है। लेकिन ये सब तब जब वो ज्यादा पूछे, पहले उसकी प्रॉब्लम समझो, पहले उसकी प्रॉब्लम समझो, फिर वो जब इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी, अरे एक बार बताओ, यही घिसा पिटे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं होते। फिर अगर वो कहता है कि भाई पैसे, वो उसका वही मेन प्रॉब्लम लोगों का यही होता है कि पैसे की प्रॉब्लम है। मैंने कहा पैसे की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं है। अगर आपके पास हाई इनकम स्किल्स होंगी तो आपको पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाउन टर्न इन द इकोनॉमी। चाहे इकोनॉमी ऊपर जाए चाहे डाउन जाए, आप आपके पास हाई इनकम स्किल है ना। देखो एक चीज होती है, जब भी इकोनॉमी डाउन होती है ना, हर सेक्टर डाउन नहीं होता, कुछ सेक्टर अप जाता है, कुछ सेक्टर डाउन होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, आई रिपीट, वो ये देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। वॉरेन बुफे 5-6 घंटे पढ़ता है, वो ट्रेंड एनालाइज करता है, कहाँ किस किस कंपनी में लगाए, अपना डीप वर्क करता है, अपनी डीप रिसर्च करता है, राइट। जी बिल्कुल। तो तो आपकी आपको आपकी एजुकेटर बनना है, सेल्समैन नहीं बनना। नहीं नहीं नहीं, तो हमें काउंसलिंग करना है ना, हम तो काउंसिल करते हैं लोगों को, हाँ, लोगों की काउंसलिंग करना समस्याएं है, काउंसलिंग। हाँ, लोगों की समस्याएं सुनना है, उसके बाद अगर हमसे हो सके तो हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल्स बताते हैं। तो भाई ने जैसे बताया कि लीड्स, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि हमें उस कोर्स में क्या क्या मिलता है और हमें क्या क्या सीखने की जरूरत है। पहला तो हो गया ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, दूसरा हो गया सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है। अभी आप देखिए कि अगर आप बाहर जाके किसी को बोलेंगे कि भैया हमारा कोर्स ले लो, ये तो समोसे बेचने जैसा हो जाएगा, राइट? तो वो ऐसा कौन सेल्समैन हो लेगा? गए। ये सेल्समैन हो गया। तो इसमें इस कोर्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है, ऑर्गेनिक लीड्स जब आएंगे आपको तो उनको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कोई भी आता है पहले क्वेरी लेके आता है, क्वेरी कब किस में बदलती है? लीड्स में बदलती है। लीड्स को हमें किस में बदलना है? प्रॉस्पेक्ट में बदलना है, और प्रॉस्पेक्ट को हमें किस में बदलना है? फॉलो अप्स में। आफ्टर फॉलो अप्स इट विल बी गेटिंग क्लोज्ड, सो क्लोज हो जाती है। तो ये सारी चीजें, ये प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो होता है प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद नीड जनरेशन या नीड समझना है, कनेक्ट विद द कस्टमर। जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसे समझाते हैं, प्रेजेंटेशन होता है। ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में एक ही स्टेटमेंट में बिक जाए सब कुछ, ऐसा नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? लीड जनरेशन, उसके बाद सेल्स स्ट्रैटेजी, उसके बाद सेल्फ ब्रांड, कैसे ब्रांड इमेज को कैसे पर्सनल बढ़ाएं। ब्रांडिंग, पर्सनल एग्जैक्टली ब्रांडिंग हो गई। पर्सनल ब्रांडिंग हो गई। तो ये सारी तीन हाँ। चीजें हो गई ना। आप ये सारी तीन चीजें सीख रहे हैं, और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, लोगों में आप कैसे जुड़ेंगे, ये सारी चीजें भी आपको कहाँ से मिलेंगी? इस कोर्स से आपको मिलती है अननोन वो। लोगों से कैसे बात करोगे? एग्जैक्टली तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फेसबुक लाइक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो अभी आजकल के जनरेशन में अपने बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप करने के लिए हर वो चीज आपको मिलेगी। ईमेल मार्केटिंग क्या है, यूट्यूब मार्केटिंग क्या है, यूट्यूब के एसईओस क्या है, कैसे आपके यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करें और कैसे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं। ये सारी चीजें जो है आपको इस कोर्स में मिलेंगी। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे, हमारे यहाँ साथ ये कह काम कर सकते हो, ये सकते हैं। थोड़े एडिशनल एड ऑन बेनिफिट्स हो गए, एड ऑन बेनिफिट्स हो गए। जी प्लस हम लोग का प्रॉपर टीम है, पूरा इकोसिस्टम है, फेसबुक ग्रुप है, बिल्कुल। टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आपको यहाँ 24/7 आपको हेल्प भी मिलती रहेगी। जहां आप अपना दिमाग लगा रहे हो, यहाँ
यहाँ कई दिमाग एक साथ लगेंगे तो आपका सोल्यूशन जल्दी निकलेगा। आप एक एक बिल्कुल। एक घंटा जिस चीज पे वेस्ट कर रहे हो वो चीज आपकी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। तो बेनिफिशियल है कि जी, नहीं, आप ये बताओ। मतलब कुल मिला के आपको इतना अच्छा इकोसिस्टम मिल रहा है कि जहाँ पे आपको हम्म, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं तो, क्योंकि आपकी तरह सेम माइंडसेट के लोग यहाँ पे आपको हजारों में मिलेंगे। जैसे कि हम्म। हाँ, 25,000 है ना भाई अपने पास टीम मेंबर्स। है, मोर देन ट्वेंटी थ्री 25,000 थाउजेंड है है ना। मेरे ख्याल से। हाँ। हाँ हाँ। तो मतलब ये डे बाय डे ग्रोथ ही हो रहा है। हम्म। जी। ये तो है। तो हाँ, तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में, मतलब जो हम कोर्सेज को ज्वाइन किए हुए हैं इस कोर्स में मिलेंगी। और उसके अलावा आपको अर्निंग की पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है इसमें। ऑप्शंस लाइक एक्टिव इनकम है और पैसिव इनकम है। इसके बारे में भाई बताएंगे आपको। नहीं नहीं, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम सबसे लास्ट में लाओ। एक चीज ये भी बताओ, वन टाइम लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग मिलती रहेगी। ये बात तो भूल ही गए ना। यही तो यूएसपी है आजकल। हाँ, वो यही तो तो है, एक्स लाइफ फैक्टर है। लॉन्ग ट्रेनिंग। लाइफ लॉन्ग हाँ, ट्रेनिंग तो मिलेगी ये आपको। आपको तो मिल ही रही है, आपके बच्चों को भी मिलती रहेगी। जी जी। मतलब वन वैल्यू टाइम फॉर मनी है। इन्वेस्टमेंट। वैल्यू फॉर मनी जी है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद आता है अपने को साइड प्रोडक्ट आता है पोटेंशियल अर्निंग, राइट? उसके बारे में आप बता दीजिए जरा। अर्निंग तो फिर वो वही हो गया ना कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, जो आपने इससे लर्न किया उसे आपको दूसरों को भी शेयर करना है। ठीक है, और आपके रेफरेंस से कोई आता है तो रेफरल इनकम भी मिल रही है आपको। आप इस कोर्स को एनरोलमेंट कर रहे हो, हैं, दूसरे को रिकमेंड कर रहे हो, दूसरे को सजेस्ट कर रहे हो, तो कोई आता है एनरोल करता है तो आपको उसका कमीशन भी तो मिलता है। ये एक, और ये अच्छा, भी तो बेनिफिट है। तो भाई हम इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि जब हम बचपन से बड़े होते हैं तब हम मतलब लाइक किसी भी बुक को पढ़ने के बाद अगर हम एप्टीट्यूड अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आर एस अग्रवाल हो गए, तो इनके बुक्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करते हैं ना कि अरे आर एस अग्रवाल की बुक अच्छी है, आप भी उनको अग्रवाल पढ़ो। साहब हम लोग को कमीशन तो देंगे नहीं उसकी, उनकी बुक बेचने का। पर यहाँ तो आपको मिल हाँ रहा है ना कमीशन। हाँ, तो हम मतलब बचपन से अभी तक मतलब रिकमेंड करते जा रहे हैं सब कुछ। अरे ये वाला दुकान अच्छा है, तो गुप्ता जी की शोरूम अच्छी है, यहाँ से लो, यहाँ से कपड़े लो। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं कि रिकमेंड करते रहते हैं, उनको रिफर करते हैं, भाई वो अच्छा है, यहाँ पे जाओ, ये वाली वैक्सीन अच्छी है। तो मतलब हम अपने एनालिसिस के हिसाब से हम उनको रिफर करते हैं, क्योंकि अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से हम भी तो उनका भला चाहते हैं ना। तो इसी प्रकार के अगर यहाँ पे अगर आप रिफर करोगे तो आपको इसका प्लस पॉइंट है। आप तो स्किल्स सीखोगे ही सीखोगे, उसके अलावा आपकी लाइक अर्निंग भी होगी, आपकी इकोनॉमिकल स्टेटस भी चेंज होगा। तो इसमें एक्टिव और पैसिव दो इनकम आप कमा सकते हो। एक चीज और होती है, जैसे जो फ्रीबी सीकर्स होते हैं ना, जिन्हें हर चीज फ्री में चाहिए होती है, वो कभी सीरियस भी नहीं होते। ठीक है, हाँ भाई, उनके पास फ्री पैसे भी की, तो बहुत मिलते हैं। एक चीज और, मैं उनसे एक चीज ये भी कहता हूँ, आपके पास आज पैसे की प्रॉब्लम है ना, आगे भी होगी। ठीक है, आपके पास आगे भी होगी क्योंकि आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आपका विक्टिम माइंडसेट है। ये है। हाँ, ठीक कुछ है, लोग बोलते हैं और मेरे अगर से आप भी। पैसा नहीं इन्वेस्ट करोगे, पैसा नहीं अगर यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आप सीरियस भी नहीं होगे। जी जी। तो कुछ कुछ लोग भाई देखिए, एक महीना पहले भी एक बंदे से मैंने पूछा था कि क्या भाई आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहोगे। उसने बोला कि हाँ अगले महीने करूंगा, अभी पैसे नहीं है। जब अगले महीने आया, जब मैं बस पूछा कि क्या आप रेडी हो आप, तो उसने बोला कि नहीं भाई, फिर एक हफ्ता बाद। तो मतलब वो लोगों के अंदर जो है ना, वो लोग सीरियस नहीं है, लाइक पोस्टपोनमेंट है उन लोगों के अंदर। तो जब ये वाली एबिलिटी रहेगी कि आप हर चीज को पोस्टपोन कर दोगे, तो कहाँ से आएगा? अगर आप एक्शन राइट नाउ नहीं लोगे, आपको कुछ भी करना है अभी करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वो बोलते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी, आ, अभी करो जो करना है, अभी करो। बिल्कुल। अगर आपको पढ़ने का ठीक है, मन कर रहा है, बुक पढ़ना है, तो पढ़ लो, आपको जो मन कर रहा है वो करो भाई। लेकिन इसे बहुत कल ही पे अगर सिंपल तरीके टालोगे। से मैं समझाता हूँ। हाँ। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। देखो, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस आई थिंक देर आर 680 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, अब तो खैर कोई कॉलेज जा नहीं रहा। चलो, फेसबुक में कोई लड़की पसंद आई, ठीक है, तो किसी लड़के को, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके बारे में हर चीज जानने की कोशिश करता है। यानी वो अपनी रिसर्च वर्क करता है, डीप रिसर्च करता है, राइट। तो वो होमवर्क तुम यहाँ पे उतना दिमाग लड़की पे लगा रहे हो, यहाँ पे क्यों नहीं लगाते? ये बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल बहुत सही, जल्दी समझ अग्री। में आएगा, ऐसे समझाओ। अग्री करता हूँ। आज के यूथ को उसी के एग्जाम्पल में समझाओ, उसी की भाषा में समझाओ, जल्दी समझ में आएगा। जी।
तो हम तो मतलब आपको टाइम भी दे रहे हैं कि आप रिसर्च करो, गूगल है, उसके बाद बुक्स हैं, आपका अपना खुद का ब्रेन है, आप रिसर्च करो, दोस्तों से पूछो, सबसे पूछो। अगर आपको लगे कि हाँ भाई इसमें कुछ नहीं, सच में। सबसे नहीं पूछो, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या राय देगा, ये बताओ। जी, जिसको मतलब जो नॉलेज ही नहीं ऑलरेडी है, फील्ड में है उससे हाँ, पूछना पड़ेगा। जिसको नॉलेज है उसी से सही बंदे से राय लो ना। सही सही है। हाँ, मतलब जो और इस अपना फील्ड में होमवर्क भी ऑलरेडी करो। काम कर रहा है। हाँ, हाँ, जो मतलब इस अपना फील्ड में होमवर्क भी ऑलरेडी करिए। काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बंदा इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है, आप उनसे राय बात ले सकते हैं। उसके बाद गूगल है, गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, कोरा भी है। तो आपको मतलब एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क मिल रहा है इस डिजिटल जनरेशन में। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ब्लाइंडली आ जाएगा या ब्लाइंडली कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं है। धोखाधड़ी तो एक चीज में बहुत और राय कम हो देता गई। हूँ अब एक हाँ ही सुनो। और उनको मैं ये राय भी देता हूँ, आप जो भी करो, कुछ भी करो, बिजनेस करता कौन है? लोग। बिजनेस आता किससे है? लोगों से। ठीक है, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क भी बढ़ाओ, और ऐसे लोगों को रखो जिनके साथ कुछ सीखने को मिले। टाइम पास के जी, लिए मत रखो, उसके लिए बहुत लोग हैं। ठीक है, नहीं तो फिर अपने अपना भी नेटवर्क टाइम सॉलिड खराब होता रखो। है। अपने नेटवर्क सॉलिड रखो, वो बोलते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बस। सही है सही है। और भाई ये ये वाला सारी चीजें कैसे। तभी पता चलेंगी, ये सारी चीजें तभी पता चलेगी जब जब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे। टुकटुकी बाजी से नहीं होने वाला कुछ भी। सही है। जितना बात और करोगे भाई। उतनी हेसिटेशन दूर होगी आपकी, जी जी। डर दूर होगा। और है? भी आप ये वाला बताते हैं इसके बारे में, क्रेडिबिलिटी वर्सेस विजिबिलिटी कुछ बोलते हैं ना, उसको भी अच्छा आप अच्छा, हाँ, समझा वो दीजिएगा। मैं वो बोलता हूँ कि भाई आप इतनी जगह वीडियोस अपलोड करोगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपलोड करोगे। इंक्रीज इन विजिबिलिटी इक्वल्स टू इंक्रीज इन क्रेडिबिलिटी। ये तो डायलॉग बाजी है। मतलब। थोड़ी मतलब अच्छी अच्छी बातें करनी है, समझाना है, और क्या है। जी। तो होता यही है कि मैंने भी मतलब बहुत सारे बड़े हमारा बड़े काम जानते हो, एंटरप्रेन्योर। सिंपल भाषा में समझाऊं क्या है? गुमराह लोगों को सही राह दिखाना है, बस। हमें ये काम करना सरल हिंदी है हाँ? है। कीप इट सिंपल। जी जी। गुमराह लोगों को सही राह दिखाना है डिजिटली। वी हैव टू चेंज द लाइफ ऑफ पीपल डिजिटली। मतलब भाई ये हमेशा करना है हमें, और कुछ नहीं करना। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करना है, ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिक आते रहेंगे। आते थे, वो बाई प्रोडक्ट है। जी। तो यहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वो लोग बाई प्रोडक्ट ही पहले देखते हैं, जो मेन वाला प्रोडक्ट है वो देखते जो नहीं है। बाई प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं ना, उनसे एक चीज ये जरूर पूछो, क्या आपके पास वैसी हाई इनकम स्किल्स हैं? हाई इनकम स्किल्स हैं? देखो, स्किल क्या होती है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर नॉलेज इज इक्वल्स टू स्किल। बिल्कुल। थ्योरी से नॉलेज मिलती है, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर नॉलेज इज इक्वल्स टू स्किल। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं, हर चीज सिंपल 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 रखो। गुमराह लोगों को सही राह दिखाना है डिजिटली। कुछ एक कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कुछ नहीं इसे। करना, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करो। हाँ। और भाई आप आपने मतलब ये कोविड की वैक्सीन ले ली? नहीं यार, अभी तो नहीं लिया है। एक्चुअली मैंने सारा दिन मतलब घर पे ही रहता हूँ। मेरा ऑफ है तो मैं सोच रहा था लेने के लिए। तो आप कौन सा मतलब लाइक बिल्कुल कर लो। रिकमेंड करोगे आप? हाँ बिल्कुल, कोवैक्सीन है सब और अपना वो वैक्सीन कराएं। पर भाई जब मैंने खुद नहीं ली तो मैं कैसे रिकमेंड कर दूं? नहीं मतलब करना कोई आपकी जरूरी है। राय, कोई राय है क्या आपकी, मतलब हाँ कौन सी हाँ बेटर बिल्कुल, और होगी? क्या। कोविडशील्ड अच्छी है, नहीं तो कोवैक्सीन हाँ, अच्छी है, नहीं कोविशील्ड अच्छी है। तो अगेन कोविडशील्ड। इसके लिए भी रिसर्च करो जरा थोड़ी सी। जी जी बिल्कुल, वो तो करेंगे ही। अच्छा। तो वही हम सोच प्लान कर रहे थे कि लेना ही बेटर है, क्योंकि अभी देखिए जान का कितना खतरा, कितना लॉस हो रहा है लाइफ। तो एक 3-4 हजार रुपये, 3-4 हजार भी नहीं लगेगा शायद, 2 हजार, एक आदमी पे 1 हजार ही लग रहा है शायद। अरे तो दो नहीं तीन भाई, हजार 250 है। 250 रुपए है, अगर प्राइवेट में जाओ। गवर्नमेंट में तो फ्री में हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस चीज का तो तो, आइडिया है। तो ठीक है, तो जी यहीं पे वार्तालाप को समाप्त करते हैं फिर। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, ठीक है, और क्या। अब चलिए। इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करो, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। लर्निंग पे फोकस करो। तो अपने ऑडियंस को तो शायद ये आज ये वीडियो जिसने मतलब मैं अपलोड कर दूंगा इसे, तो
जो जो मिस कर गए हैं कि ऑनलाइन पे पैसा कैसे कमाएं, वो सारी स्किल्स क्या होती हैं, हाई स्किल्स, ये सारी चीजों पे फोकस कैसे करें। हाय संतोष, मेरा दोस्त है ये भाई, हेलो कॉलेज में संतोष हम जी। लोग साथ में पढ़े। अच्छा, एक चीज और, वो तो हाँ काफी कुछ तो हमारे कोर्स में भी दिखाया है, समझाया हुआ है, लेकिन वो कोर्स भी तो देखो यार पूरा। बिल्कुल तभी मैंने ये बोला ना, अपने अपलीड अपलाइन जो है, जो स्पॉन्सर है, उनसे रेगुलर बात करो, पहली चीज। बिल्कुल दूसरी चीज, कोर्स कोर्स पूरा देखो, और एक ही बार देखने से नहीं होगा, कई बार देखना पड़ेगा। बिल्कुल। स्पेशली अयाज साहब का जो है ना, वो सेक्शन, वो जो मॉड्यूल जो है, कम से कम 8-10 बार देखो, ठीक है। जी जी और वो शिवम गुप्ता का भी देखो 8-10 बार। बिल्कुल। अब मैंने एक चीज नोटिस करी थी अभी रिसेंटली, जब इन्होंने प्रेजेंटेशन ली ना, काफी चेंज हो गई है प्रेजेंटेशन, और ज्यादा अच्छी हो गई है। अयाज साहब की प्रेजेंटेशन जैसे पहले थी 1 साल पहले, और आपकी प्रेजेंटेशन में देखो डिफरेंस दिखता है। अब ऐसा लग रहा है कि उनमें उनको और ज्यादा नॉलेज हो गई है, और नई चीज पता चली है, और मतलब अच्छी वो प्रेजेंटेशन लोग, देने लग गए हैं। वाओ, मतलब टाइम हाँ के हिसाब से वो लोग भी अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं। हाँ, और क्या, सारी बिल्कुल। सारा फंडा यही पे तो है कि अपना स्किल्स, मतलब नॉलेज जितना लोगे ना, उतना उस हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। तो आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो नॉलेज कहाँ से आएंगी, बुक्स पढ़ने से। अच्छा, आपने जो बुक पढ़ी है उससे मतलब नई चीजें कुछ पता चली आपको? हाँ वही, जो यही सब है उसमें भी, सब यही लिखा हुआ है कि किसी के पास भी जाओ तो प्रॉपर पूरा होमवर्क करके जाओ, उसके बिल्कुल। बारे में जान के जाओ, या किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर कॉल कर रहे हो, प्रोफाइल चेक करो उसकी, तो प्रोफाइल भाई चेक करो। जो जो आप मतलब बुक पढ़ रहे हो ना, वो जरा ऑडियंस को बता दो ताकि वो भी मतलब ले सके। साइकोलॉजी ऑफ सेल्स बाय ब्रायन ट्रेसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी उसे पढ़ूंगा और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी पढ़ें, आराम से नॉलेज गेन करिए। क्योंकि देखिए, टाइम पास तो बहुत सारी, टाइम पास करने का तो बहुत सारा साधन है, लेकिन कुछ सच में कुछ पॉजिटिवली कुछ करने का है तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। और चाहे एक वो चीज आप। और, जी कोरा है, कोरा भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी जी। QUORA। हाँ हाँ बिल्कुल। और तो वो भी है, यूट्यूब भी है, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन अब हम लोग कैसे ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को, यहीं पे तो मिस कर रहे हैं ना। और सर, वहां पे कैसी है माहौल देहरादून में? सुना है इधर तो तूफान अच्छा उफान है। आया था, तूफान आया था तूफान बोल आया रहे थे ना आप? सुबह। दमदार यहाँ बारिश होती है एकदम। इस साइड तो अच्छा लगता ही है। हाँ, कभी आऊंगा मैं मिलने, कभी हमारा भी वहीं पे है हाँ मतलब बिल्कुल, आप बनारस में। देहरादून में से है क्या बनारस। देखने लायक चीजें? भाई देहरादून में यहाँ बुद्धा पार्क बहुत अच्छा है, रॉबर्ट्स केव है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी यहाँ पे FRI में, फॉरेस्ट रिसर्च ओह इंस्टीट्यूट में। हाँ, वाह। जो और वहाँ पे मौसम भी सोटी है काफी ना उसकी प्लीजेंट शूटिंग, जो शूटिंग है ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसकी शूटिंग इधर की है, देहरादून की है। फिर मसूरी है। है। अच्छा, तो तब तो फिर अच्छा, मौसम भी प्लीजेंट रहता है ना वहाँ पे हमेशा? हाँ अच्छा रहता है, ज्यादा गर्मी हो जाए बारिश हो जाती है यहाँ। भाई आप भी कभी आओ ना हैदराबाद, यहाँ पे तिरुपति उरुपति देख लेना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं हैदराबाद में भी। मैं तिरुपति वहां तो गया हूँ, क्या नाम है वो जो है ना, तिरुपति तिरुमाला। गए हैं आप? मैं केप अरे कॉमोडन वाह। तक गया हूँ, कन्याकुमारी तक भी गया हूँ। अरे वाह। 2018 2018 में गया था। अच्छा, अरे तिरुपति का गजब का एक्सपीरियंस है। मैं खुद अपने मतलब कॉलेज के दिनों में ही 3-4 बार जाके आ चुका हूँ। बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बहुत सही मेंटेन किया है। जी जी बिल्कुल। तिरुमाला क्या है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वो मंदिर है, गोल्ड है, पूरा गोल्ड गोल्ड लगा रखा है। जी जी। वो तो पूरा अच्छा रास्ता है। इतना अच्छी तरह मेंटेन किया है, पूरा वो वो बना रखे हैं, गार्डन बना रखा है, अच्छी हम्म, देखने लायक जगह। हम्म। और पता है, यहाँ के लोग भी ना वहाँ बनारस जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ के लोग। उधर तो साउथ में मतलब लोग रिलीजियस बहुत है। बहुत रिलीजियस है, हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, काफी मतलब उनकी आस्था और रिलीजियस एक्टिविटीज भी अच्छी हैं, और मंत्रों के उच्चारण भी गजब का करते हैं यहाँ के लोग। और वो रामोजी फिल्म सिटी बड़ी फेमस है वहां पे, रामोजी हाँ फिल्म सिटी। जी जी। तो तो फिर भाई जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों से, अपने ऑडियंस से? क्योंकि टाइम भी हो रहा है, और बस ओनली मैं थर्टी तो फिर सेकेंड वही भी नहीं, बात 1 मिनट रिपीट है। करूंगा,
अपना कोर्स बार बार देखो, गो बैक टू द जी बेसिक्स, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जहां से स्टार्ट किया है फिर वहां जो फिर से जाओ, फिर बिल्कुल। से रिपीट करो, फिर से देखो कहाँ 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 गड़बड़ कर रहे हो। अपने जो अपलाइन है उससे रेगुलर बात करते रहो, कंसल्ट करते रहो। इसके अलावा आपका जो ग्रुप में हो, आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, वहां आपको कोई ना कोई और अब अच्छा तो बंदा मिलेगा, भाई, उसके भी अभी तो टच में मुझे, रहो। जी जी, अभी तो भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो गई है कि मेरी टीम को संभालना है। तो अभी मतलब टीम को भी संभालना है, उसके बाद नए बंदों को भी, तो लाइक टाइम मैनेजमेंट बहुत